Hello and welcome you all to the Agrawal Tutorials YouTube channel. This is the part 2 of single phase induction motor multiple choice questions, and we have already covered 26 questions in part 1. So we will continue with the 27th questions with this video, right? So let's start the 27th question. Burning out of windings is due to windings क्यों burn out होती हैं इंडक्शन मोटर में? शॉर्ट सर्किटेड कैपेसिटर, capacitor value changed, open circuiting of capacitor, or none of the above. So the correct option will be by short circuiting the capacitor. What is the reason behind it? The reason is when a capacitor is short circuited, then the effect of capacitor is neutralizes, and all of a sudden the machine will face shortage of the torque. Due to that वो एक overloaded condition में चली जाती है, और overloaded condition में जाके मशीन के थ्रू एक हीट एक्सेसिव हीटिंग की वजह से आपका जो वाइंडिंग्स हैं वो बर्न हो सकती हैं. दैट इज व्हाई द आंसर इज ड्यू टू द शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ द कैपेसिटर. ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर हियर. ए ऑप्शन इज करेक्ट. Next question is, direction of rotation of a split phase motor can be reversed by reversing the connection of running winding only, starting winding only, either A and B, both A and B. So we can change the direction of rotation of a single phase induction motor by just reversing the terminal of any of these two windings. Main winding और starting winding में से किसी का भी एक winding का अगर हम terminals को reverse कर दें तो आपका मोटर का जो direction है वो reverse हो जाता है. So either A and B will be the right one. Next is the range of efficiency for shaded pole motor is. Shaded pole induction motors को हम बहुत ही कम पावर रेटिंग्स के लिए यूज करते हैं, लेस देन 60 वॉट रेटिंग्स के लिए, और ये वो मशीन्स हैं जिनको हम यूजुअली टॉयज में या इलेक्ट्रिक क्लॉक्स में इस तरह की कुछ एप्लीकेशंस में यूज करते हैं. एंड इट ऑफर्स ए वेरी low starting torque and a very bad efficiency because of a poor power factor. So the range of efficiency is almost around 5 to 35%. Next is, in a capacitor start single phase motor when capacitor is replaced by a resistance. अगर हम कैपेसिटर को रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दें तो क्या होगा? तो कैपेसिटर वहां पर स्टार्टिंग टॉर्क को प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया गया था. अगर हम अब कैपेसिटर को हटा के उसकी जगह रेजिस्टेंस लगाएंगे तो रेजिस्टेंस का तो नेचर है पावर को कंज्यूम करना, पावर का लॉस करना. सो इन दैट कंडीशन योर मोटर विल कंज्यूम options हैं, torque will increase, the motor will consume less power, motor will run in reverse direction, motor will continue to run in the same direction. So according to the given options, if you connect a resistance, it will consume more power, ना कि less power. ठीक है, तो ये ऑप्शन तो यहाँ पर करेक्ट नहीं हो सकता. Torque will increase, this is not also possible because resistance लगा के torque increase नहीं होगा, decrease होगा. Next one is motor will run in reverse direction. This is also not possible by connecting the resistance. Last option is motor will continue to run in the same direction. This option will be correct as per the given options कि आपका जो मशीन है रेजिस्टेंस लगाने से उसी सेम डायरेक्शन में रोटेट करता रहेगा. Although there will be some more effects on the machine in this condition, but since the question is only for the ये सिर्फ इसीलिए पूछा गया है कि आपका मोटर कैसे बिहेव करेगा, तो this is the correct answer for this question. Next is, पावर फैक्टर ऑफ ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज यूजुअली. यूनिटी तो नहीं होगा कभी भी, लीडिंग भी नहीं होगा, यूनिटी 2.8 लीडिंग भी नहीं होगा, ओनली लैगिंग. लैगिंग विल बी द ओनली पावर फैक्टर फॉर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर. तो गिवन ऑप्शंस में से जो मोस्ट सुटेबल आंसर है दैट इज द लैगिंग पावर फैक्टर. Next question is, the motor used on small lathes is usually universal motor, DC shunt motor, single phase capacitor run motor, three phase synchronous motor. Small lathe की बात हो रही है तो small lathe applications में we cannot go for the three phase machines, right? So that is why we cannot use a three phase synchronous motor. Also a synchronous motor is one which runs on the synchronous speed, and three phase nature का speed है, तो this is not required here. DC shunt motor and single phase capacitor motors में से we'll go for the single phase induction motor because of the advantages of using a AC machine. क्योंकि DC के कुछ disadvantages होते हैं
जिसमें maintenance problem, commutator and brushes problem and all. And universal problem is universal motor is one which can run on both type of supplies AC and DC. So the most suitable machine जो स्लेथ मशीन्स के लिए यूज की जा सकती है, जिसमें एक स्टार्टिंग में हाई टॉर्क भी हमें मिलेगा और पावर फैक्टर इंप्रूव्ड होगा, दैट इज सिंगल फेज कैपेसिटर रन मोटर, राइट, क्योंकि लेथ एप्लीकेशन में आपको इनिशियली एक हाई स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत पड़ेगी और रनिंग कंडीशन में भी आपको एक कांस्टेंट स्पीड की जरूरत वहां पे होगी. दैट इज व्हाई सिंगल फेज कैपेसिटर रन मोटर इज द मोस्ट सुटेबल. Next is a single phase induction motor is inherently self-starting with high torque, inherently self-starting with low torque, inherently non-self-starting with low torque, inherently non-self-starting with with high torque. So as we know, single phase induction motors are not at all self-starting. पहली चीज तो ये, तो ऑप्शन नंबर ए और बी तो आपके दोनों ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गए. उसके बाद आपका जो इंडक्शन मोटर है वो लो टॉर्क मशीन है, ना कि हाई टॉर्क मशीन. इट प्रोवाइड्स अ वेरी लो टॉर्क ड्यूरिंग द स्टार्टिंग, राइट. तो दिस इज नॉन सेल्फ स्टार्टिंग विद ए लो टॉर्क. ठीक है, दिस इज द करेक्ट वन. सी ऑप्शन इज राइट. Single phase induction motor usually operates on 0.6 power factor lagging, 0.8 power factor lagging, 0.6 power factor leading, unity power factor. तो यूनिटी एंड लीडिंग कंडीशंस को ऑटोमेटिकली आप देखते हैं, यहां से हटा दीजिए क्योंकि इट डज नॉट ऑपरेट्स ऑन लीडिंग और यूनिटी पावर फैक्टर. इट हैज ओनली द लैगिंग पावर फैक्टर्स. उसमें भी अगर हम देखें तो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का जो पावर फैक्टर है वो काफी लो होता है, जिस वजह से इन मशीन्स को हम लो पावर एप्लीकेशंस में ही यूज करते हैं. सो 0.6 पावर फैक्टर लैगिंग विल बी द करेक्ट वन बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ दीज मोटर्स. In split phase motor, auxiliary winding is off. Auxiliary winding means the starting winding we are talking about. Thick wire placed at the top of the slots. Thick wire placed at the top of the slots. Thin wire placed at the top of the slots. Thin wire placed at the bottom of the slots. तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि thick wire होता है कि thin wire होता है. उसके बाद ये देखना है कि bottom of the slots पे होता है या top of the slots पे होता है. तो आंसर्स का एक बेसिक आइडिया लगाने के लिए सबसे पहले तो स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर की एक कंडीशन है कि जो RA अपॉन XA है दैट शुड बी ग्रेटर देन RM अपॉन XM. ये है आपका ऑक्सिलरी साइड का R/X रेशियो, ये है आपका मेन वाइंडिंग का R/X का रेशियो. तो इन दिस कंडीशन इफ वी हैव R/X रेशियो इज ग्रेटर देन दिस वन, so this resistance has to be more. And if we want to increase the value of resistance here, as you know resistance is equals to होता है rho L upon A. So in that case the area should be less, that is why the area the resistance will become more. So for this case we must have the thin wire. तो यहाँ से जो thick वाले options हैं A and B, उन दोनों को हम यहाँ से काट देते हैं. हमारे पास C और D दो ऑप्शन बचे हैं जिनसे हम यहाँ पर आइडिया लगा सकते हैं कि इन दोनों में से ही कोई एक आंसर करेक्ट होना चाहिए. सो द ऑक्सिलरी वाइंडिंग का जो डायमीटर है वायर्स का वो थिन होता है और ये वाइंडिंग स्लॉट्स के टॉप पर होती है, ना कि बॉटम पे. ठीक है, तो वी मस्ट हैव टू रिमेंबर दैट कि द ऑक्सिलरी वाइंडिंग आर पुट ऑन द टॉप ऑफ द स्लॉट्स एंड इट हैज थिन वायर. थिन वायर का रीजन तो मैंने आपको बता दिया, बिकॉज इट हैज टू हैव the high value of resistance, that is why the thin wire is considered, but it plays on the top of the slots. It should be keep in mind. So C option is the correct answer. Next is, which of the following motors will operate at high power factor? Shaded pole, split phase, capacitor start and capacitor run. कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का टॉर्क हाई होता है लेकिन उसका पावर फैक्टर हाई नहीं होता, बिकॉज द कैपेसिटर गेट्स डिस्कनेक्टेड आफ्टर मशीन अचीव्स 75% approximately the speed. But the capacitor run motors which always have capacitor during its operation will have higher power factor. So the D option is the correct one. Next question is, in a two value capacitor motor the capacitor used for running purpose is. Two value capacitor motor का मतलब है कि capacitor start and capacitor run motor, because there we use two value capacitors. ठीक है, जिसमें से जो starting capacitor है उसका वैल्यू लगभग 10 से 15 गुना होता है स्टार्ट रनिंग कैपेसिटर से. इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो रनिंग पर्पस का कैपेसिटर है यानी कि जो CR है इनमें से कौन से टाइप का होना चाहिए. बेसिकली जो इलेक्ट्रोलिटिक टाइप ऑफ कैपेसिटर है वो कंटिन्यूअस ड्यूटी कैपेसिटर नहीं होता, लॉन्ग वर्किंग के लिए हम इसको यूज नहीं कर सकते, तो दिस शुड नॉट बी द ऑप्शन.
ठीक है। इसमें से इन चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन है जो रनिंग पर्पस के लिए हम यूज करते हैं, दैट इज द पेपर स्पेस्ड ऑयल फिल्ड टाइप ऑफ कैपेसिटर, जो कंटिन्यूअस रेटिंग का कैपेसिटर हम इसमें यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर्स हैज हाईएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क? इनमें से कौन से मशीन का हाईएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क है? स्टार्टिंग टॉर्क हाईएस्ट उस मशीन का होगा जिसके अंदर कैपेसिटर लगा हुआ होगा, पहली चीज तो ये, ठीक है। तो इन चारों मशीन्स में अगर हम देखें तो वी हैव ए कैपेसिटर स्टार्ट मोटर जो स्टार्टिंग के टाइम पर सबसे ज्यादा हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है। सो दिस इज द राइट ऑप्शन आउट ऑफ गिवन 4 मशीन्स, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। Next question is the wattage rating for a ceiling fan motor will be in the range of, ceiling fan मतलब जो छत का पंखा होता है उसकी wattage कितनी होती है? तो the wattage of a ceiling fan is varies in between 50 to 150 watt, 50 से 150 watt तक होती है। और ये जो सीलिंग फैन है इसके अंदर जो मोटर यूज हुई है दैट इज PSC टाइप ऑफ मोटर, परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर, ठीक है। इसके अंदर एक कैपेसिटर ऑलवेज कनेक्टेड होता है जो कि स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में जुड़ा हुआ होता है। कोई भी सेंट्रीफ्यूगल स्विच इन मशीन्स के अंदर नहीं होता है, ठीक है। तो द रेटिंग इज 50 to 150 वॉट। नेक्स्ट इज द वोल्टेज ऑफ मोटर फॉर ड्राइविंग डोमेस्टिक स्विंग मशीन विल बी अराउंड, जो घरों में सिलाई मशीन है उसका वोल्टेज रेटिंग कितना होता है? That varies from 100 to 150 watt, ठीक है। इसका slightly higher होता है as compared to the ceiling fan motor because swing machine का जो torque requirement है वो ज्यादा है as compared to the ceiling fan motor, that is why the wattage rating is slightly higher. The torque developed by a single phase induction motor at the starting is pulsating, uniform, none of the above or nil. सिंगल फेस इंडक्शन मोटर जो टॉर्क डेवलप करती है उसमें अगर नेट टॉर्क देखें तो दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। सो निल टॉर्क आपका इंडक्शन मोटर प्रोड्यूस करती है, लेकिन अगर उसको हम ऑल्टरनेटिंग नेचर में देखें तो इट इज पल्सेटिंग टाइप, ठीक है। बट सिंस इन दिस क्वेश्चन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया गया है कि वेदर इट प्रोड्यूसेस और नॉट, बट ये पूछा गया है कि कितना टॉर्क स्टार्टिंग में डेवलप करती है, तो दैट आंसर विल बी 0 और निल। Next is in split phase motors main winding is off, thin wire placed at the top, thin wire placed at the bottom. So again same concept के ऊपर क्वेश्चन है हमारा कि RA upon XA should be greater than RM upon XM, जिसमें ऑक्सिलरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए और एरिया कम होना चाहिए, ठीक है। जबकि इस कंडीशन में एरिया हाई होना चाहिए और रेजिस्टेंस लो होना चाहिए। दैट मींस एरिया अगर बड़ा है तो हमें थिक वायर यूज करना पड़ेगा। तो एनी ऑफ दीज टू ऑप्शंस मस्ट बी करेक्ट, सी और डी में से कोई एक ऑप्शन ठीक होगा। नाउ चूंकि ऑक्सिलरी वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दोनों की दोनों पैरेलल में कनेक्टेड होती हैं, राइट। तो जो आपका ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, स्टार्टिंग वाइंडिंग है, वो टॉप ऑफ द स्लॉट्स पे होता है, जबकि मेन वाइंडिंग जो है वो बॉटम ऑफ द स्लॉट्स पे होती है, ठीक है। तो वी मस्ट कीप दीज थिंग्स इन माइंड कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग इज ऑन द टॉप ऑफ द स्लॉट्स एंड मेन वाइंडिंग इज ऑन द बॉटम ऑफ द स्लॉट्स। दोनों का रेजिस्टेंस में जो डिफरेंस है उससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि थिक होगा कि थिन होगा। सो इन दिस केस थिक वायर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द स्लॉट्स विल बी द करेक्ट आंसर। Next is in a ceiling fan employing capacitor run motor, secondary winding surrounds the primary winding surrounds the secondary winding, both are usual arrangements, none of the above. तो सीलिंग फैन के जो मोटर हैं उसके अंदर दोनों वाइंडिंग्स हैं, एक प्राइमरी वाइंडिंग है एक सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो जो सेकेंडरी वाइंडिंग है दैट इज इनसाइड ऑफ द मोटर, इनसाइड ऑफ द मशीन, और जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो सेकेंडरी वाइंडिंग के बाहर उसके चारों तरफ होती है। दैट मींस प्राइमरी वाइंडिंग सराउंड्स द सेकेंडरी वाइंडिंग इन केस ऑफ सीलिंग फैन, ठीक है, जिसके अंदर कैपेसिटर कनेक्टेड होता है। Next is question is the motor used for the compressors is DC series motor, shaded pole motor, capacitor start, capacitor run motor, reluctance motor. So out of these 4 options, capacitor start, capacitor run motor is suitable from the induction motor, जिसमें हमें एक हाई स्टार्टिंग टॉर्क भी मिल जाती है, साथ ही साथ एक गुड पावर फैक्टर भी मिल जाता है। दूसरा, कैपेसिटर कनेक्टेड होने के साथ साथ जो टॉर्क रिक्वायरमेंट है कंप्रेसर्स की वो भी यहाँ से फुलफिल हो सकती है। तो दैट इज व्हाई द ऑप्शन सी इज।
Next question is, which of the following statements regarding two value capacitor motor is incorrect? Two value capacitor, again, when we have CS and CR both connected in parallel, it is a reversing motor. Yes, we can reverse the machine by reversing the connections of any of the two windings. So this is correct, but answers ke liye this is not correct because this is true for the case of two value capacitor. It is preferred to permanent split single value capacitor motors where frequent reversal are required. Now, this should not be correct क्योंकि frequently reversal की कंडीशन में आपका जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है, क्योंकि वो शॉर्ट ड्यूटी कैपेसिटर है और अगर आप उसको बार बार स्टार्टिंग में हम यूज करेंगे तो दैट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम फॉर द मशीन. सो बी ऑप्शन इज नॉट ट्रू फॉर द टू वैल्यू कैपेसिटर. थर्ड ऑप्शन की बात करें, इट हैज लो स्टार्टिंग एज वेल एज रशिंग करंट. यस, इट इज आल्सो करेक्ट फॉर द टू वैल्यू कैपेसिटर. स्टार्टिंग के टाइम पर इसका स्टार्टिंग करंट लो होता है, साथ ही साथ इसका जो रशिंग करंट है, रशिंग करंट इसको इनरश करंट बोलते हैं. इनरश करंट होता है कि ऑल ऑफ ए सडन मशीन के थ्रू जो बहुत हाई करंट आ जाता है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, दैट इज कॉल्ड द इनरश करंट. तो वो भी यहाँ पर कम होता है. एंड इट हैज हाई स्टार्टिंग टॉर्क, दैट इज आल्सो ट्रू. टू वैल्यू कैपेसिटर का स्टार्टिंग करंट हाई होता है. सो आउट ऑफ 4 गिवन ऑप्शंस, एक ही ऑप्शन इनकरेक्ट है जो कि हमारा बी ऑप्शन है, जिसमें कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंट रिवर्सल जहां पर जरूरत है वहां पर परमानेंट स्प्लिट सिंगल वैल्यू कैपेसिटर मोटर का यूज किया जाता है. दैट इज इनकरेक्ट. Next is, two value capacitor motors find increased applications as compressor motor in small home air conditioners because it is comparatively cheaper, it has almost non-destructible capacitor, it is low starting as well as running current at relatively high power factor, it is quite in operation. So two value capacitor की बात करेंगे तो two value capacitor में एक तो आपको एक स्टार्टिंग टॉर्क मिलेगा, अच्छा स्टार्टिंग टॉर्क मिलेगा, साथ ही साथ चूंकि कैपेसिटर आपका रनिंग में भी कनेक्टेड है तो हाई पावर फैक्टर भी मिलेगा. ठीक है. अब कंप्रेसर्स में उसको हम यूज कर रहे हैं, उसका क्या कारण है? उसका बेसिकली कारण ये है कि इसका जो स्टार्टिंग करंट है, सी ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो इट हैज लो स्टार्टिंग करंट एज रनिंग करंट एंड रिलेटिवली हाई पावर फैक्टर एज कंपेयर्ड टू द अदर मशीन्स. इसीलिए टू वैल्यू कैपेसिटर मोटर्स को कंप्रेसर मोटर्स के लिए ज्यादातर यूज करते हैं. तो सी ऑप्शन इज द correct one here. Next is, if starting winding of a single phase induction motor is left in the circuit, it will run faster, spark at light loads, draw excessive current and overheat, run slower. अगर स्टार्टिंग वाइंडिंग को आप सर्किट में कनेक्ट रहने देंगे तो ड्यू टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन द स्टार्टिंग वाइंडिंग, मशीन एक्सेसिव करंट ड्रॉ करेगी सप्लाई से, जिससे हीटिंग प्रॉब्लम मशीन का वहां क्रिएट होगा. तो थर्ड ऑप्शन is the correct one in this case, अगर हम स्टार्टिंग वाइंडिंग को मशीन से नहीं हटाते हैं तो. ठीक है. ये सब चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कनेक्ट होने के कारण हमारा जो करंट है वो चूंकि डिवाइड होता है दो पार्ट में, तो एक एक्स्ट्रा करंट की रिक्वायरमेंट हमेशा स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए बनी रहेगी, जिससे सप्लाई से एक हाई करंट की डिमांड ऑलवेज बनी रहेगी. और हाई करंट फ्लो होने की वजह से ओवर हीटिंग मशीन के अंदर होगी, क्योंकि मशीन इज नॉट meant to keep this main winding always. जिस मशीन में हमें मेन वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट करना है, अगर उसको रखते हैं तो वहां पर ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम आएगी. नेक्स्ट इज, a centrifugal switch is used to disconnect starting winding when motor has. सेंट्रीफ्यूगल स्विच को डिस्कनेक्ट करने की जो कंडीशन है वो है लगभग 70 से 75% ऑफ द सिंक्रोनस स्पीड पर मोटर आपका जब अचीव कर लेता है, उस समय पर सेंट्रीफ्यूगल स्विच को डिस्कनेक्ट होना है. तो 50 to 70% out of the given 4 options is the most suitable answer. Next is, the rotor slots in an induction motor are usually not quite parallel to the shaft because जो slots हैं वो सीधे सीधे नहीं होते, वो skewed होते हैं. तो इसका क्या रीजन है? The reason is it improves the power factor, it improves the efficiency, it reduces the tendency of rotor teeth to remain under the stator teeth and none of the above. तो ऑब्वियसली हमें पता है जो स्क्यूइंग है वो क्यों की जाती है. स्क्यूइंग करने का एक ही कारण है कि आपका जो स्टेटर और रोटर के पोल्स हैं वो एक साथ अटैच होके लॉकिंग टेंडेंसी ना क्रिएट करें, जिसके कारण उसको रिड्यूस करने के लिए वहां पर स्क्यूइंग की जाती है. तो आउट ऑफ दीज ऑप्शंस दिस वन इज द करेक्ट वन. Next is, if a single phase induction motor runs slower than normal, the most likely defect is. अगर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर नॉर्मल से कम स्पीड पर चलता है तो क्या कारण हो सकता है?
Short circuit winding, open circuited winding, Vaughan bearing, all of the above. So out of given options, आपका जो प्रॉब्लम है इंडक्शन मोटर का, अगर कोई भी किसी भी तरह की वाइंडिंग का इशू नहीं है, क्योंकि शॉर्ट सर्किटेड वाइंडिंग और ओपन सर्किटेड वाइंडिंग की वजह से आपका मशीन जो है वो स्लोअर नहीं चलेगा, दैट वुड नॉट बी द केस इन दिस केस। तो अगर आपका मशीन धीरे चल रहा है तो वहां पर बियरिंग प्रॉब्लम ही हो सकता है, जिस वजह से मशीन पे एक्सेसिव फ्रिक्शन के कारण मशीन का स्पीड जो है वो कम हो गया है। ठीक है। शॉर्ट सर्किटेड वाइंडिंग की अगर बात करेंगे तो शॉर्ट सर्किट होने से एक्सेसिव करंट फ्लो होगा, जिससे मशीन जल जाएगी। ओपन सर्किटेड की बात करें तो अगर आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग ओपन होगा तो मशीन स्टार्ट ही नहीं होगी। तो इन सभी ऑप्शंस के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है वॉन बियरिंग। ठीक है, उसी की वजह से ही आपका मशीन स्लो चल रहा है। Next question is, when a DC series motor is connected to AC supply, the power factor will be low because of. Question although DC का है तो anyways let's discuss कि अगर DC को AC पे कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा। As we know DC मोटर्स में जब हम DC कनेक्ट करते हैं तो वहां पर जो रिएक्टिव एलिमेंट है इंडक्टर और कैपेसिटर वो वहां पर क्या काम नहीं करते, क्योंकि इंडक्टर उस कंडीशन में आपका एज ए शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है और कैपेसिटर एज ए ओपन सर्किट। लेकिन जब आप एसी कनेक्ट करते हो तो एसी कनेक्ट करते ही इंडक्टेंस और कैपेसिटर दोनों के दोनों एक्ट करने लगते हैं, दोनों के दोनों एक्टिव होते हैं। और डीसी मोटर्स के अंदर चूंकि नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हैं, जिसकी वजह से आपका जो इंडक्टेंस है आर्मेचर और फील्ड का, वो वहां पर एक हाई इंडक्टेंस प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हाई इंडक्टेंस की वजह से करंट बहुत ज्यादा लैगिंग वोल्टेज से हो जाता है और पावर फैक्टर बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। इस वजह से सीरीज मोटर को हम एसी सप्लाई पे कनेक्ट करना प्रेफर नहीं करते हैं। तो आपका जो ऑप्शन होगा दैट विल बी द करेक्ट वन, थर्ड वन, हाई इंडक्टेंस ऑफ फील्ड एंड आर्मेचर सर्किट्स। ठीक है, तो total out of 51 we have discussed 50 questions related to single phase, one question was related to DC here। ठीक है, तो 50 क्वेश्चंस हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के। चूंकि सिलेबस बहुत छोटा सा है इसीलिए 50 क्वेश्चंस आर एनफ टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो यहाँ बन सकते हैं, जो कॉन्सेप्ट सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का बनता है। डिफरेंट टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहाँ बने हैं, तो उन टॉपिक्स पर आपको ध्यान रखते हुए इन सारे क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है, ताकि इनके अलावा कोई और क्वेश्चन बनता है तो वो आप यहाँ पर समझ सकें। ठीक है, और अगर आपको सारी चीजें सही समझ में आ रही हैं, वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और आप अगर मेरे चैनल से सीख रहे हैं तो यहाँ बने रहें चैनल के ऊपर, ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें और आप उन सारे वीडियोस से अपनी लर्निंग को एनहांस करते रहें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।